एक ओंकार सतनाम सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਸੋਚੈ ਸੋਚ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਸੋਚੀ ਲੱਖ ਵਾਰ ਚੁੱਪੈ ਚੁੱਪ ਨ ਹੋਵਈ ਜੇ ਲਾਇ ਰਹਾ ਲਿਵਤਾਰ ਭੁਖਿਆ ਭੁਖ ਨ ਉਤਰੀ ਜੇ ਬੰਨਾ ਪੁਰੀਆ ਭਾਰ ਸਹਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲੱਖ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨ ਚੱਲੈ ਨਾਲ ਕੇਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈਐ ਕੇਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੈ ਪਾਲ ਹੁਕਮ ਰਜਾਈ ਚੱਲਣਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖਿਆ ਨਾਲ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਆਕਾਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਹਿਆ ਜਾਈ ਹੁਕਮੀ ਹੋਵਨ ਜੀਅ ਹੁਕਮ ਮਿਲੈ ਵਡਿਆਈ ਹੁਕਮੀ ਉਤਮ ਨੀਚ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਦੁਖ ਸੁਖ ਪਾਈਆ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੀ ਬਖਸ਼ੀਸ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਸਦਾ ਭਵਾਈਆ ਹੈ ਹੁਕਮੈ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੈ ਜੇ ਬੁੱਝੈ ਤਾਂ ਹਉਮੈ ਕਹਿ ਨਾ ਕੋਏ ਗਾਵੈ ਕੋ ਤਾਣ ਹੋਵੈ ਕਿਸੈ ਤਾਣ ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨੀਸਾਨ ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆ ਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵਿਦਿਆ ਵਿਖਮ ਵਿਚਾਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੇ ਤਨ ਖੇਹ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜੀਅ ਲੈ ਫਿਰਦੇ ਗਾਵੈ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ ਗਾਵੈ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ ਕਥਨਾ ਕਥੀ ਨ ਆਵੈ ਟੋਟ ਕਾਥੇ ਕਾਥ ਕਥੀ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਕੋਟ ਦੇਦਾ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਥੱਕ ਪਾਹੇ ਜੁਗਾ ਜੁਗੰਤਰ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ ਹੁਕਮੀ ਹੁਕਮ ਚਲਾਏ ਰਾਹ ਨਾਨਕ ਵਿਖਸੈ ਵੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚ ਨਾਏ ਭਾਖਿਆ ਭਾਉ ਅਪਾਰ ਆਖੈ ਮੰਗੈ ਦੇਹ ਦੇ ਦਾਤ ਕਰੇ ਦਾਤਾਰ ਫੇਰ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਐ ਜਿਤ ਦੁਸੈ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹਾਉ ਕੇ ਬੋਲਣ ਬੋਲੀਐ ਜਿਤ ਸੁਣ ਤਰੇ ਪਿਆਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾ ਵਡਿਆਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਮੀ ਆਵੈ ਕੱਪੜਾ ਨਦਰੀ ਮੋਖ ਦਵਾਰ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਆਪੇ ਸਚਿਆਰ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਨਿਰੰਜਨ ਸੋਏ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗਾਵੀਐ ਗੁਣੀ ਨਿਧਾਨ ਗਾਵੀਐ ਸੁਣੀਐ ਮਨ ਰੱਖੀਐ ਭਾਉ ਦੁਖ ਪਰ ਹਰ ਸੁਖ ਕਰ ਲੈ ਜਾਏ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਵੇਦੰ ਗੁਰਮੁਖ ਰਹਿਆ ਸਮਾਈ ਗੁਰ ਈਸਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ ਜੇ ਹਉ ਜਾਣਾ ਆਖਾ ਨਾਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਥਨੋ ਨ ਜਾਈ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਤੀਰਥ ਨਾਵਾ ਜੇ ਤਿਸ ਭਾਵਾ ਵਿਣ ਭਾਣੇ ਕੇ ਨਹਾਏ ਕਰੀ ਜੇਤੀ ਸੇਠੋ ਪਾਈ ਵੇਖਾ ਵਿਣ ਕਰਮਾ ਕੇ ਮਿਲੈ ਲਈ ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਿਕ ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਏਕ ਦਾਤਾ ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨ ਜਾਈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਖੰਡਾ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਚਲੈ ਸਭ ਕੋਏ ਚੰਗਾ ਨਾਮ ਰਖਾਏ ਕੈ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ ਕੇ ਕੀਟਾ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ ਦੋਸੀ ਦੋਸ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਗੁਣੇ ਗੁਣ ਕਰੇ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ ਤੇਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸੁਝਈ ਜੇ ਤਿਸ ਗੁਣ ਕੋਏ ਕਰੇ ਸੁਣਿਆ ਸਿੱਧ ਪੀਰ ਸੁਰਨਾਥ ਸੁਣਿਆ ਧਰਤ ਤਵਲ ਆਕਾਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਦੀਪ ਲੋ ਪਾਤਾਲ ਸੁਣਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕੈ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਈਸ਼ਵਰ ਬਰਮਾ ਇੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਮੁਖਸਾ ਲਾਹਣ ਮੰਦੋ ਸੁਣਿਆ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਤਨ ਭੇਦ ਸੁਣਿਆ ਸਾਸਤ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸੋ ਸੁਣਿਆ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਗਿਆਨ ਸੁਣਿਆ 68 ਕਾ ਇਸਨਾਨ ਸੁਣਿਆ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ ਸੁਣਿਆ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾਹ ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥ ਹੋਵੈ ਅਸਗਾਹ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ ਸੁਣਿਆ ਦੁਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ
ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨ ਜਾਏ, ਜੇ ਕੋ ਕਹੇ ਪਿਛੈ ਪਛਤਾਏ। ਕਾਗਦ ਕਲਮ ਨ ਲਿਖਣ ਹਾਰ, ਮੰਨੇ ਕਾ ਬਹਿ ਕਰਨ ਵਿਚਾਰ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਸੁਰਤ ਹੋਵੈ ਮਨ ਬੁੱਧੇ, ਮੰਨੈ ਸਗਲ ਭੁਵਨ ਕੀ ਸੁਧੇ। ਮੰਨੈ ਮੋਹ ਚੋਟਾ ਨ ਖਾਏ, ਮੰਨੈ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨ ਜਾਏ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸਿਉ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥੋ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਨ ਬੰਧੋ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਮੰਨੈ ਪਾਵੈ ਮੋਖ ਦੁਆਰੋ, ਮੰਨੈ ਪਰਵਾਰੈ ਸਾਧਾਰੋ। ਮੰਨੈ ਤਰੈ ਤਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ, ਮੰਨੈ ਨਾਨਕ ਭਵੈ ਨ ਭਿਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਭਾਵੈ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ। ਪੰਚੇ ਸੋਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। ਜੇ ਕੋ ਕਹਿ ਕਰੈ ਵਿਚਾਰ, ਕਰਤੇ ਕਹਿ ਕਰਨੈ ਨਾਹੀ ਸੁਮਾਰ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ, ਸੰਤੋਖ ਤਾਪ ਰੱਖਿਆ ਜਿਨ ਸੂਤ। ਜੇ ਕੋ ਬੁੱਝੈ ਹੋਵੈ ਸਚਿਆਰ, ਧਵਲੇ ਉੱਪਰ ਕੇਤਾ ਭਾਰ। ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਫਿਰੈ ਹੋਰ ਹੋਰ, ਤਿਸ ਤੇ ਭਾਰਤ ਲੈ ਕਵਣ ਜੋਰ। ਜੀ ਜਾਤ ਰੰਗਾ ਕੇ ਨਾਵ, ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਬੜੀ ਕਲਾਮ। ਇਹੋ ਲੇਖਾ ਲਿਖ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਲੇਖਾ ਲਿਖਿਆ ਕੇਤਾ ਹੋਏ। ਕੇਤਾ ਤਾਣ ਸਵਾਲਿਆ ਰੂਪ, ਕੀਤੀ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਕੌਣ ਕੂਤ। ਕੀਤਾ ਫਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸ ਤੇ ਹੋਏ ਲਖ ਦਰਿਆਓ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਅਸੰਖ ਭਾਉ, ਅਸੰਖ ਪੂਜਾ ਅਸੰਖ ਤਪ ਤਾਉ। ਅਸੰਖ ਗ੍ਰੰਥ ਮੁਖ ਵੇਦ ਪਾਠ, ਅਸੰਖ ਜੋਗ ਮਨ ਰਹਿ ਉਦਾਸ। ਅਸੰਖ ਭਗਤ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਅਸੰਖ ਸਤੀ ਅਸੰਖ ਦਾਤਾਰ। ਅਸੰਖ ਸੂਰ ਮੋਹ ਭਗਸਾਰ, ਅਸੰਖ ਮੋਨ ਲਿਵ ਲਾਏ ਤਾਰ। ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖੰਦ ਘੋਰ, ਅਸੰਖ ਚੋਰ ਹਰਾਮ ਖੋਰ। ਅਸੰਖ ਅਮਰ ਕਰ ਜਾਹੇ ਜੋਰ, ਅਸੰਖ ਗਲ ਵੱਢ ਹੱਤਿਆ ਕਮਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਪਾਪੀ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਕੂੜਿਆਰ ਕੂੜੇ ਫਿਰਾਹੇ। ਅਸੰਖ ਮਲੇਛ ਮਲ ਭਖ ਖਾਹੇ, ਅਸੰਖ ਨਿੰਦਕ ਸਿਰ ਕਰੈ ਭਾਰ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੈ ਵਿਚਾਰ, ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵੈ ਏਕ ਵਾਰ। ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਅਸੰਖ ਨਾਵ ਅਸੰਖ ਥਾਵ, ਅਗੰਮ ਅਗੰਮ ਅਸੰਖ ਲੋ। ਅਸੰਖ ਕਹਿ ਸਿਰ ਭਾਰ ਹੋਏ, ਅਖਰੀ ਨਾਮ ਅਖਰੀ ਸਾਲਾਹ। ਅਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾਹ, ਅਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਅਖਰਾ ਸਿਰ ਸੰਜੋਗ ਬਖਾਣ, ਜਿਨੇ ਲਿਖੇ ਤਿਸ ਸਿਰ ਨਾਹੇ। ਜੇ ਫਰਮਾਏ ਤਿਵ ਤੇ ਪਾਹੇ, ਜੇਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇਤਾ ਨਾਉ। ਵਿਣ ਨਾਵੈ ਨਾਹੀ ਕੋ ਥਾਉ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨ ਜਾਵਾ ਏਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਭਰੀਐ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਨ ਦੇਹ, ਪਾਣੀ ਧੋਤੈ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮੂਤ ਪਲੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਣ ਲਈਐ ਓਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕਾ ਸੰਗ, ਓਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਪੁੰਨੀ ਪਾਪੀ ਆਖਣ ਨਾਹੀ, ਕਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਲਿਖ ਲੈ ਜਾਹੋ। ਆਪੇ ਬੀਜ ਆਪੇ ਹੀ ਖਾਹੋ, ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਆਭਉ ਜਾਹੋ। ਤੀਰਥ ਤਾਪੋ ਦਇਆ ਦਤ ਦਾਨੋ, ਜੇ ਕੋ ਪਾਵੈ ਤਿਲ ਕਾ ਮਾਨੋ। ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਹਾਉ। ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਵਸਤ ਆਥੇ ਬਾਣੀ ਬਰਮਾਓ, ਸਤ ਸੁਹਾਣ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਕਵਣ ਸੋ ਵੇਲਾ ਵਕਤ ਕਵਣ, ਕਵਣ ਥਿਤ ਕਵਣ ਵਾਰੋ। ਕਵਣ ਸੇ ਰੁੱਤੀ ਮਾਹੋ, ਕਵਣ ਜਿਤ ਹੋਵਾ ਆਕਾਰੋ। ਵੇਲ ਨਾ ਪਾਈਆ ਪੰਡਤੀ, ਜੇ ਹੋਵੇ ਲੇਖ ਪੁਰਾਣ। ਵਕਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਕਾਦੀਆਂ, ਜੇ ਲਿਖਨ ਲੇਖ ਕੁਰਾਨ। ਥਿਤ ਵਾਰ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜਾਣੈ, ਰੁੱਤ ਮਾਹੁ ਨਾ ਕੋਈ। ਜਾ ਕਰਤਾ ਸੇਠੀ ਕਉ ਸਾਜੇ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸੋਈ। ਕਿਵ ਕਰ ਆਖਾਂ ਕਿਵ ਸਾਲਾਹੀ, ਕਿਉ ਵਰਨੀ ਕਿਵ ਜਾਣਾ। ਨਾਨਕ ਆਖਣ ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ, ਇਕ ਦੂ ਇਕ ਸਿਆਣਾ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੀ ਨਾਈ, ਕੀਤਾ ਜਾ ਕਾ ਹੋਵੈ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਕੋ ਆਪਉ ਜਾਣੈ, ਅੱਗਾ ਗਿਆ ਨ ਸੋਹੈ। ਪਾਤਾਲਾਂ ਪਾਤਾਲ ਲਖ, ਆਗਾਸਾਂ ਆਗਾਸ। ਓੜ ਕੋੜ ਭਾਲ ਥੱਕੇ, ਵੇਦ ਕਹਿਨ ਇਕ ਬਾਤ। ਸਹਸ 18 ਕਹਿਨ ਕਤੇਬਾ, ਅਸਲੂ ਇਕ ਧਾਤ। ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਲਿਖੀਐ, ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਨਾਨਕ ਵੱਡਾ ਆਖੀਐ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪ। ਸਾਲਾਹੀ ਸਾਲਾਹੇ ਇਤੀ ਸੁਰਤ ਨ ਪਾਈਆ। ਨਦੀਆਂ ਅਤੈ ਬਾਹ, ਪਵੈ ਸਮੁੰਦ ਨ ਜਾਣੀਐ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਹ ਸੁਲਤਾਨ, ਗਿਰਹਾ ਸੇਤੀ ਮਾਲ ਧਨ। ਕੀੜੀ ਤੁਲ ਨ ਹੋਵਨੀ, ਜੇ ਤਿਸ ਮਨੋ ਨ ਵਿਸਰੈ। ਅੰਤ ਨ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਕਰਨੈ ਦੇਣ ਨ ਅੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਵੇਖਣ ਸੁਣਨ ਨ ਅੰਤ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕਿਆ ਮਨ ਮੰਤ। ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਕੀਤਾ ਆਕਾਰ, ਅੰਤ ਨ ਜਾਪੈ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਲਾਹੇ, ਤਾਕੇ ਅੰਤ ਨ ਪਾਏ ਜਾਹੇ। ਇਹੋ ਅੰਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੋਏ, ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਐ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ। ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਥਾਉ, ਉੱਚੇ ਉੱਪਰ ਉੱਚਾ ਨਾਉ। ਏ ਵਡ ਉੱਚਾ ਹੋਵੈ ਕੋਏ, ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕਉ ਜਾਣੈ ਸੋਏ। ਜੇ ਵਡ ਆਪ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਆਪੇ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਕਰਮੀ ਦਾਤੇ। ਬਹੁਤਾ ਕਰਮ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਵੱਡਾ ਦਾਤਾ ਤੇਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਕੀਤੇ ਮੰਗੈ ਜੋਧ ਅਪਾਰ,
ਕੇਤੇ ਗਣਤ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੋ, ਕੇਤੇ ਖਪ ਟੁੱਟੈ ਬੇਕਾਰ, ਕੇਤੇ ਲੈ ਲੈ ਮੁਕਰ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਮੂਰਖ ਖਾਹੀ ਖਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਦੁਖ ਭੂਖ ਸਦ ਮਾਰ, ਇਹ ਭੇ ਦਾਤ ਤੇਰੀ ਦਾਤਾਰ। ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਭਾਣੈ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਆਖ ਨ ਸਕੈ ਕੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਏ ਕੋ ਆਖਣ ਪਾਏ, ਉਹ ਜਾਣੈ ਜੇਤੀਆਂ ਮੋਹਿ ਖਾਏ, ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪੇ ਦੇ, ਆਖੈ ਸੇ ਪੇ ਕੇਈ ਕੇ, ਜਿਸ ਨੋ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਾਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਅਮੁੱਲ ਗੁਣ ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਵਾਪਾਰੀਏ ਅਮੁੱਲ ਭੰਡਾਰ, ਅਮੁੱਲ ਆਭੈ ਮੁੱਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਅਮੁੱਲ ਪਾਏ ਮੁੱਲਾ ਸਮਾਹੇ, ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ ਮੁੱਲ ਦੀਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਤੁਲ ਅਮੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਬਖਸ਼ੀਸ ਮੁੱਲ ਨੀਸਾਨ, ਅਮੁੱਲ ਕਰਮ ਅਮੁੱਲ ਫੁਰਮਾਨ, ਅਮੁੱਲੋ ਅਮੁੱਲ ਆਖਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਆਖ ਆਖ ਰਹੇ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਆਖੈ ਵੇਦ ਪਾਠ ਪੁਰਾਣ, ਆਖੈ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਹਿ ਬਖਿਆਣ, ਆਖੈ ਬਰਮੇ ਆਖੈ ਇੰਦ, ਆਖੈ ਗੋਪੀ ਤੈ ਗੋਵਿੰਦ, ਆਖੈ ਈਸਰ ਆਖੈ ਸਿੱਧ, ਆਖੈ ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਬੁੱਧ, ਆਖੈ ਦਾਨਵ ਆਖੈ ਦੇਵ, ਆਖੈ ਸੁਰ ਨਰ ਮੂਨ ਜਨ ਸੇਵ, ਕੇਤੇ ਆਖੈ ਆਖਣ ਪਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਉਠ ਉਠ ਜਾਹੇ, ਕੇਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇਹ, ਤਾਖ ਨ ਸਕੈ ਕੇਈ ਕੇ, ਜੇਵੜ ਭਾਵੈ ਤੇਵੜ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਣੈ ਸਾਚਾ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋ ਆਖੈ ਬੋਲ ਵਿਗਾੜ, ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰ ਗਾਵਾਰਾ ਗਾਵਾਰ, ਸੋ ਦਾਰੂ ਕੇਹਾ ਸੋ ਘਰ ਕੇਹਾ, ਜਿਤ ਭੈ ਸਰਬ ਸੰਭਾਲੇ, ਵਾਜੇ ਨਾਦ ਅਨੇਕ ਸੰਖਾ, ਕੇਤੇ ਬਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਕੇਤੇ ਰਾਗ ਪਰੀ ਸਿਉ ਕਈਨ, ਕੇਤੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਤੋਨੋ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈ ਸੰਤਰ, ਗਾਵੈ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ, ਗਾਵੈ ਚਿਤ ਗੁਪਤ ਲਿਖ ਜਾਣੈ, ਲਿਖ ਲਿਖ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਈਸਰ ਬਰਮਾ ਦੇਵੀ, ਸੋਨ ਸਦਾ ਸਵਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਇੰਦੇ ਦਾਸਨ ਬੈਠੇ, ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਰ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਸਿੱਧ ਸਮਾਧੀ ਅੰਦਰ, ਗਾਵਨ ਸਾਧ ਵਿਚਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਜਤੀ ਸਤੀ ਸੰਤੋਖੀ, ਗਾਵੈ ਵੀਰ ਕਰਾਰੇ, ਗਾਵਨ ਪੰਡਿਤ ਪੜਨ ਰਖੀਸਰ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਵੇਦਾਂ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਮੋਹਣੀਆਂ ਮਨ ਮੋਹਨੇ, ਸੁਰਗਾ ਮਚ ਪਿਆਲੇ, ਗਾਵਨ ਰਤਨੋ ਪਾਏ ਤੇਰੇ, 68 ਤੀਰਥ ਨਾਲੇ, ਗਾਵੈ ਜੋਧ ਮਹਾ ਬਲਸੂਰਾ, ਗਾਵੈ ਖਾਣੀ ਚਾਰੇ, ਗਾਵੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡਾ, ਕਰ ਕਰ ਰੱਖੇ ਧਾਰੇ, ਸੇਈ ਤੁਧਨੋ ਗਾਵੈ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵਨ, ਰਤੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤ ਰਸਾਲੇ, ਹੋਰ ਕੇਤੇ ਗਾਵਨ ਸੇ ਮੈਂ ਚਿਤ ਨ ਆਵਨ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਸੋਈ ਸੋਈ ਸਦਾ ਸਚ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਚਾ ਸਾਚੀ ਨਾਈ, ਹੈ ਪੀ ਹੋਸੀ ਜਾਏ ਨ ਜਾਸੀ, ਰਚਨਾ ਜਿਨ ਰਚਾਈ, ਰੰਗੀ ਰੰਗੀ ਭਾਤੀ ਕਰ ਕਰ ਜਿਨਸੀ, ਮਾਇਆ ਜਿਨੋ ਪਾਈ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖਾ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋਈ ਕਰਸੀ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਈ, ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਸਾਹਾ ਪਾਤ ਸਾਹਿਬ, ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰੁਜਾਈ, ਮੁੰਦਾ ਸੰਤੋਖ ਸਰਮਪਦ ਝੋਲੀ, ਧਿਆਨ ਕੀ ਕਰੈ ਵਿਭੂਤ, ਚਿੰਤਾ ਕਾਲ ਕੁਆਰੀ ਕਾਇਆ, ਜੁਗਤ ਡੰਡਾ ਪ੍ਰਤੀਤ, ਆਈ ਪੰਥੀ ਸਗਲ ਜਮਾਤੀ, ਮਨ ਜੀਤੈ ਜਗ ਜੀਤ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਭੁਗਤ ਗਿਆਨ ਦਇਆ ਭੰਡਾਰਨ, ਘਟ ਘਟ ਵਾਜੈ ਨਾਦ, ਆਪ ਨਾਥ ਨਾਥੀ ਸਭ ਜਾ ਕੀ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਅਵਰਾ ਸਾਧ, ਸੰਜੋਗ ਵਿਜੋਗ ਦੋਇ ਕਾਰ ਚਲਾਵੈ, ਲੇਖੇ ਆਵੈ ਭਾਗ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਏਕਾ ਮਾਈ ਜੁਗਤ ਵਿਆਈ, ਤਿੰਨ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਭੰਡਾਰੀ, ਇੱਕ ਲਾਏ ਦੀ ਬਾਣ, ਜਿਵ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਵੈ, ਜਿਵ ਹੋਵੈ ਫੁਰਮਾਨ, ਉਹ ਵੇਖੈ ਉਹਨਾਂ ਨਦਰ ਨ ਆਵੈ, ਬਹੁਤਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਆਸਣ ਲੋਏ ਲੋਏ ਭੰਡਾਰ, ਜੋ ਕਿਛ ਪਾਇਆ ਸੋ ਏਕਾ ਵਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਕੀ ਸਾਚੀ ਕਾਰ, ਆਦੇਸ਼ ਤਿਸੈ ਆਦੇਸ਼, ਆਦ ਅਨੀਲ ਅਨਾਦ ਅਨਾਹਤ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਏਕੋ ਵੇਸ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਬਹੁ ਲੱਖ ਹੋਏ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਐ, ਏਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼, ਇਹ ਤੁਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ, ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਕੀਸ, ਸੁਣ ਗੱਲਾਂ ਆਕਾਸ ਕੀ, ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈਐ, ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ, ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁਟੈ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਉਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ, ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਏ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ, ਤਿਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ, ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ, ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤਿਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਜ ਪਰਵਾਨ, ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ, ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ, ਨਾਨਕ ਗਿਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ, ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਆਖੋ ਕਰਮ, ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ, ਕੇਤੇ ਕਾਨ ਮਹੇਸ਼, ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਕੜੀਐ, ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ,
केतिया कर्म भूमि मेर केते, केते धूप देश, केते इंद चंद सूर केते, केते मंडल देश, केते सिद्ध बुध नाथ केते, केते देवी वेश, केते देव दानव मुन केते, केते रत्न समुंद, केतिया खाणी केतिया बाणी, केते पात नरिंद, केतिया सुरती सेवक केते, नानक अंत न अंत, ज्ञान खंड में ज्ञान प्रचंड, तिथै नाद विनोद कोड़ आनंद, सरमखंड की बाणी रूप, तिथै घाट घड़िया बहुत अनूप, ताकियां गल्लां कथियां न जाहे, जे को कहे पिछै पछताए, तिथै घड़िया सुरत मत मन बुद्ध, तिथै घड़िया सुरा सदा की सुध, कर्मखंड की बाणी जोर, तिथै होर न कोई होर, तिथै जोध महाबल सूर, तिन में राम रहया भरपूर, तिथै सीतो सीता में ममाहे, ताके रूप न कथने जाहे, ना ओहे मरह न ठागे जाहे, जिनकै राम बसै मन माहे, तिथै भगत वसै के लोह, करै आनंदो सच्चा मन सोए, सच खंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथै खंड मंडल वर भंड, जे को कथै ता अंत न अंत, तिथै लोह लोह आकार, जिव जिव हुक्म तिवै तिवकार, ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਪਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਪਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤੋ ਤਿਤ ਢਾਲੇ, ਘੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼ਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ, ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ, ਚੰਗਿਆਈਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਹਮਰੀ ਬੇਦਨ ਤੂੰ ਜਾਣਤਾ ਸਾਹਾ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਅਵਰ ਕਿਆ ਜਾਣੇ ਕੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ ਮੈਂ ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਸੱਚ ਸਭ ਹੋਏ,
साहा दूजा नाही कोए, दूजा नाही कोए। झूठा किस को आखिए साहा दूजा नाही कोए, दूजा नाही कोए। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे ध्यावे दिन रात, सब तुझे ध्यावे दिन रात। सबना विच तू वरतदा साहा, सब तुझे ध्यावे दिन रात, सब तुझे ध्यावे दिन रात। सब तुझ ही था मंग दे मेरे साहा, तू सबना करहे एक दात, तू सबना करहे एक दात। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। सबको तुझ ही विच है मेरे साहा,
सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाए। सब जी तेरे तू सब सदा मेरे साहा, सब तुझ ही माहे समाहे, सब तुझ ही माहे समाहे। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्यावे मेरे साहा, सब तुझ है त्यावे मेरे साहा। सबना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझ है त्यावे मेरे साहा, सब तुझ है त्यावे मेरे साहा। ज्यों पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह, सच नानक के पातशाह। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए। हमरी बेदन तू जानता साहा, अवर क्या जाने कोई, अवर क्या जाने कोई। मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मेरे साहा मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए, मैं हर दर्शन सुख होए। वाहिगुरु। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? इस ब्रह्मांड की,
इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात कौन सी है? ये जो हम अमृत वेले उठते हैं, नाम जपते हैं, गुरु नानक पातशाह कहते हैं निम्रता रखो। ये सब करें तो क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? नैनीताल में एक फकीर की कब्र है। बहुत लोग नैनीताल गए होंगे। जब अगली बार जाओ तो पूछकर यहां पर जरूर जाना। नैनीताल में एक फकीर की सोने की कब्र है, सोने की। बड़ी बात यह नहीं है कि कब्र सोने की है, बड़ी बात यह है कि उस कब्र के ऊपर एक संगे मरमर का, मार्बल का 10 फुट बड़ा पत्थर लगा हुआ है और उस पर कुछ लिखा हुआ है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बात लिखी है जो सृष्टि की सबसे बड़ी दात है। क्या है वो? उस फकीर की कब्र के पत्थर पर लिखा हुआ है कि किसी की 100 साल की उम्र हो, ध्यान देना, किसी की 100 साल की उम्र हो और 100 सालों में उसने हर रोज बुरे से बुरे कर्म किए हो, पाप कमाए हो 100 साल तक। ऐसे आदमी की मौत से एक दिन पहले अगर गुरु की नजर उस पर हो जाए, गुरु नानक की नजर हो जाए, तो उसका भी लेखा माफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु की नजर, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नजर करे। शर्त है, लख खुशियां तुझे मिल जाएंगी, पातशाहियों की पातशाहियां तुझे मिल जाएंगी, इतना आनंद तुझे मिल जाएगा, पर जे सतगुर नदर करे। नदर, इस सृष्टि की महापुरुष वचन किया करते थे, इससे ऊपर कुछ है ही नहीं। गुरु की नदर। जरा विचार करके देखिए, सज्जन ठग ने हजारों कत्ल किए थे, हजारों कत्ल, पर जब गुरु नानक ने नदर की तो कहां गया उसका लेखा? प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भूमि चोर ने सारी जिंदगी चोरियां की, ठगियां की, पर जब गुरु नानक की नजर हो गई, कहां गया उसका लेखा? इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात गुरु की नजर। गुरु की नजर होती क्या है? अगर गुरु की नजर हट जाए तो क्या होता है? गुरु की नजर हो जाए तो क्या होता है? और फिर आखिर में कि हमें ये नजर मिले कैसे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या करें जिससे गुरु की नजर मिल जाए? आओ साथ साथ में शब्द गायन करें, शब्द श्रवण करें और गायन भी करें। बड़ा सरल शब्द है, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुरु नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। खुशियां
सतगुरु मदद करे, जो सतगुरु मदद करे, जो सतगुरु मदद करे, जो सतगुरु मदद करे, जो सतगुरु मदद करे, लख खुशियाँ आशाएं, जो सतगुरु मदद करे, लख खुशियाँ आशाएं, जो सतगुरु मदद करे, 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 लख खुशियाँ आशाएं, जो सतगुरु मदद करे, लख खुशियाँ आशाएं, जो सतगुरु मदद करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दान, सबसे बड़ी नियामत गुरु की नदर। गुरबाणी फरमाती है, एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े। ध्यान से श्रवण कीजिए। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सवाल पूछा है और फिर जवाब दिया है। ध्यान से सुनिए। एक निहाली पैसवन, एक आदमी आराम से सो रहा है। गुरु ने उसे हर तरह की बख्शिश दी है। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, आराम की नींद सो रहा है, अच्छा बिस्तर है, ऊपर नौकर खड़ा है, वो उसे पंखा कर रहा है। एक निहाली पैसवन, एक ऊपर रहन खड़े, एक ऊपर खड़ा है सर के ऊपर। दोनों में अंतर क्या है? क्या अंतर है? तीसरे गुरु नानक गुरु अमरदास जी समझाते हैं, तिना सवारे नानका जिनको नदर करे, कि उसकी सवारता है जिसके ऊपर नदर कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सबना ऊपर नदर है तेरी, किसे है थोड़ी, किसे है कनेरी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उसकी सबके ऊपर है, पर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा नदर है, किसी के ऊपर थोड़ी। अब जो लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त, उनके ऊपर भी नदर है। तो सत्संगत में बैठे हैं। आज का दिन सब लोग पार्टियों शादियों में डीजों में जाते हैं। उन सबको छोड़कर आप लोग यहाँ बैठे हो, क्यों? गुरु की नदर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। थोड़ी नदर है, पर जिनके ऊपर ज्यादा नदर है वो अमृत वेले भी उठकर दरबार में आते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर ये नदर अगर गुरु की हट जाए, शाहजहां को कौन नहीं जानता जिसने ताजमहल बनवाया। दास शॉर्ट में बता रहे हैं, शॉर्ट में, क्योंकि मुझे प्रकरण बहुत बड़ा है। शाहजहां जिसने ताजमहल बनवाया, जहां पर ताजमहल बना है वहां पर हजारे लाशें दफन है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिन कारीगरों ने बनाया उनके हाथ कटवा दिए, कईयों की मौत हो गई। अहंकार से भरा हुआ शाहजहां एक जगह से गुजर रहा है। रास्ते में देखा एक फकीर बैठा है। शाहजहां को मजाक सूझा, फकीर को अपने पास बुलाया। कहने लगा, फकीर जी, सुना है कि आप लोग मस्तक पढ़ लेते हो।
मेरे मस्तक में क्या लिखा है बताइए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फकीर पहुंचा हुआ था कमाई वाला। गुरबानी फरमाती है प्रभ के सिमरन सब किछ सूझे। सब कुछ सूझ जाता है। जो प्रभु का सिमरन करते हैं उन्हें आज का और कल का सब कुछ दिखाई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरबानी कह रही है, 5वें गुरु नानक श्री सुखमनी साहिब जी में कह रहे हैं, गुरु अर्जन देव जी महाराज प्रभ के सिमरन सब कुछ सूझे। यह अवस्था का धारण था। फकीर कहने लगा बादशाह मैं बता तो दूं पर तू सहन नहीं कर पाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बादशाह कहने लगा बताओ मेरे मस्तक में क्या लिखा है। कहने लगा रोटी तो दूर एक दिन ऐसा आएगा तुझे पानी के घूंट के लिए भी तरसेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तेरा राजपाट सब चला जाएगा। शाहजहां जोर जोर से हंसने लगा। कहने लगा पहली बात तो मेरा राजपाट जा ही नहीं सकता। मेरी सेना इतनी ताकतवर है, मुझसे बड़ा बादशाह हिंदुस्तान में है ही नहीं। दूसरी बात अगर राजपाट चला भी गया तो मेरे पास इतनी दौलत है कि 100 पुश्ते बैठकर खाएं खत्म नहीं हो सकती। शाहजहां ने ऐलान करवा दिया कि इस मेरे राज्य में जितने भी फकीर हैं सबको जेल में डाल दो। प्यार से बोले धन गुरु नानक। कि ये लोगों को डराते हैं, गलत बातें बताते हैं। उस फकीर को भी जेल में डलवा दिया। तो क्या हुआ? नाम जपने वालों की बेअदबी की, उन्हें दुख दिया तो क्या हुआ? नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कर आइंदा। बाणी फरमाती है कि अगर वो अपनी नदर घुमा ले, उल्टी कर दे, अपनी नदर हटा ले निरंकार, तो सुल्तान को भी घास काटने वाला बना देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कर आइंदा। और सब जानते हैं और औरंगजेब ने शाहजहां को जेल में कैद किया। सब जानते हैं, सबने हिस्ट्री पढ़ी है। रोटी की बुर्कियां गिनकर मिलती थी, ग्रहियां गिनकर, पानी के घूंट गिनकर मिलते थे शाहजहां को। एक बार शाहजहां ने चिट्ठी लिखी शाही बनाकर उस पानी से कि मेरा पानी का एक घूंट बढ़ा दे, मेरा मन करता है कि कभी कभी मैं कुछ लिखा करूं तुझे। तो औरंगजेब ने जवाब दिया था अपने पीने के पानी का एक घूंट कम कर ले अगर लिखने का शौक है तो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कर आइंदा। एक बार सालाना दिवस आ गया मुमताज महल का, जिसकी याद में उसने ताजमहल बनवाया था। शाहजहां ने औरंगजेब को फिर से चिट्ठी लिखी कि मुझे मुमताज महल की कब्र पे फूल चढ़ाने की इजाजत दे दे। औरंगजेब ने इजाजत दी पर सारे राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया कि शाहजहां नंगे पांव वहां जाएगा। किसी ने सर झुकाकर सलाम किया उसका सर कलम कर दिया जाएगा। अगर किसी ने उसे रोटी खिलाई, पानी पिलाया, सारे परिवार को मार दिया जाएगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक। वही सुल्तान नंगे पांव चल रहा है, खाने को रोटी नहीं, पीने को पानी नहीं, कब्र पे जा रहा है। नदी किनारे पहुंचा, बेड़ी में बैठा। जब नदी पार करने लगा तो बेड़ी वाले ने अपना खाना निकाल लिया। ये इतिहास में लिखा है। वो खाना निकाला, सूखी रोटी। शाहजहां ने हाथ आगे बढ़ाया, एक रोटी मुझे भी दे दे। जैसे ही देने लगा दूसरे ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहा है? औरंगजेब का हुक्म है अगर इसे खाना खिलाया सारे परिवार समेत तुझे मार दिया जाएगा। बेड़ी वाले ने वो रोटी वापस ले ली। कहने लगा नहीं, तुझे खिलाने के चक्कर में मैं अपना परिवार नहीं मरवा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही शाहजहां कह रहा था कि मेरा राज्य कोई नहीं छीन सकता, ऐसा दिन आ ही नहीं सकता। पर अगर गुरु की नदर हट जाए, नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना कहा कराइंदा। बाणी कहती है भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर नदर उपट्ठी हो जाए, डर के रहा करो, डर के। ये क्यों सुनाई है दास ने ये गाथा? सबको पता थी, डर के रहा करो। महापुरुष वचन किया करते थे किसी का हृदय मत दुखाया करो।
और चलो उसकी भी माफी है, पर कोई नाम जपने वाला महापुरुष, कोई संत, कोई फकीर, उसका हृदय तो गलती से भी मत दुखाया करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? नजर हट जाएगी, नजर हट गई तो राजा से भिखारी बना देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ तो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे ये बढ़ाएंगे, अगर नजर कर दे तो क्या होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब इस एक बार दास, एक बार सिर्फ सारी संगत, कोई रचना खाली ना रहे। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, सारे लख खुशियां। लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नतर करे, लख खुशियां। जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ऐतिहासिक घटना है, जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने चमकौर की गढ़ी छोड़ी, सारा परिवार छोड़ा, जंगल में है, तो इतिहास में नाम आया है चौधरी शमीर। नाम आया है चौधरी शमीर, गांव का चौधरी था। ऐलान था कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जहां पर मिले उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनकी कोई सेवा न करे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। नहीं तो सारे परिवार की हत्या कर दी जाएगी, ये ऐलान था। पर चौधरी शमीर फिर भी छिपा छिपा कर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कई दिनों तक दूध पिलाने की सेवा करता रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर रोज दूध लेकर आता, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को छकाता। एक दिन चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने हाथ जोड़ लिए, कहने लगा पातशाह एक बेनती है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे क्या बेनती है बताओ। चौधरी शमीर कहने लगा पातशाह मेरे ऊपर नजर कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझ पर नजर कर दो, मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे चौधरी कल आना, कल तुझसे बात करेंगे। चौधरी शमीर चला गया। अगले दिन जब दूध लेकर आया, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज दूध पी रहे हैं। चौधरी शमीर ने फिर से बेनती की पातशाह मेरा जन्म मरण काट दो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज उसकी तरफ देखने लगे, कहने लगे भाई तेरा काम कर तो दिया है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौधरी शमीर हैरान हुआ, कहने लगा पातशाह मैं समझा नहीं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे तेरा काम हमने रात को ही कर दिया था, क्या रात को तेरे साथ कुछ घटा नहीं? तो चौधरी शमीर कहने लगा पातशाह और तो कुछ नहीं हुआ, कल रात को मुझे बहुत बुरे बुरे दो सपने आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहने लगा जब मैं सोया तो सपने आए कि मेरी गंदी से गंदी जूनियों में मैं भटक रहा हूं, मेरा जन्म हो रहा है और मैं मर रहा हूं, जन्म हो रहा है मर रहा हूं।
कई जोनियां मैंने भटकी, घर में एक बर्तन गिरा, मेरी नींद खुल गई। फिर से मैं सोया, फिर से वही सपना शुरू हो गया। कई जोनियों में मैंने जन्म लिया। पाशा बात समझ में नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, चौधरी शमीर, तूने गुरु नानक के घर में दूध की सेवा की है, गुरु नानक की तुझ पर नजर हो गई है। ये जो तूने जोनियां सपने में देखी हैं, तूने शरीर करके भोगनी थी। इस संसार में आकर गुरु नानक की नजर हो गई है, तेरी सारी जोनियां 2 सपनों में काट दी हैं। तो हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कमाल की बात है, निरंकार का लिखा हुआ भी पूरा हो गया कि जो जोनियां उसने भुगतनी थी भुगती, पर सपने में। हर से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कैसे? गुरु की नदर हो गई। नदर, ये नदर मिले कैसे? बात को जरा समझना। ठीक है, सब लोग हरमंदिर साहब जाते हैं। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर, लगभग क्या उससे कम ही है, बाबा दीप सिंह जी का दर है। दास ने पहले भी बताया है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। जितनी संगत हरमंदिर साहब में होती है, साथ संगत जी, कई बार उससे ज्यादा संगत बाबा दीप सिंह जी के दर पर होती है। क्यों? क्योंकि गुरु नानक अपने भक्तों को वड्याई देता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई नंदलाल जी कमाल की बात लिखते हैं, कमाल की। महापुरुष वचन किया करते थे, काश हमारी भी बिरती, हमारी भी अवस्था भाई नंदलाल जी जैसी हो जाए। कहते थे, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिए कहते थे कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया। भाई नंदलाल जी की अवस्था, गुरु गोविंद सिंह जी के 52 कवियों में से सबसे ऊंची श्रेणी के कवि भाई नंदलाल जी क्या लिखते हैं गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में कि मौज में अगर आ गए, कतरे से दरिया कर दिया, नदरे रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सच है, ये पंक्तियां सच हैं। हरमंदिर साहब से 1 किलोमीटर दूर ये दर है, धन धन बाबा दीप सिंह जी का दर। मैं गुरु साहब जी की हजूरी में क्या क्या बताऊं आपको। साथ संगत जी प्रत्यक्ष शक्तियां वापरती हैं, प्रत्यक्ष। एक होता है आप अरदास करो, आपके मन में डाउट होता है पूरी होगी कि नहीं होगी, अरे वहां पर अरदास करके बाहर निकलो, आपका काम हुआ होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा दीप सिंह जी का दर। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं उस दर की। मैंने उस दर से बहुत कुछ पाया साथ संगत जी, बहुत कुछ। कभी मुश्किल समा आ जाए, बाबा दीप सिंह जी, शहीद सिंह उसी वक्त सहायता करते हैं, उसी वक्त, 1 सेकंड नहीं लगता। हर से बोलिए धन बाबा नानक, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी, धन बाबा दीप सिंह जी। महापुरुष कहने लगे, हमारा एक आदमी था, उसने किसी से पैसे लेने थे। वो जो सामने वाला था वो सत्संगी नहीं था। कहने लगा मैंने कोई पैसे नहीं देने, मुकर गया। तो फैसला ये हुआ, अमृतसर में फैसले इस प्रकार होते हैं, आपस में कहने लगे बाबा दीप सिंह जी के दर पे जाकर कह दे कि तूने मेरे पैसे नहीं देने, मैं छोड़ दूंगा, बात खत्म। वो आदमी जिसकी कोई श्रद्धा नहीं थी चला गया, और सिर्फ इतना नहीं कहा कि मैंने पैसे नहीं देने हैं, यहां तक कह दिया अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी टांग टूट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और बड़ी होशियारी से बाहर आ गया। जैसे ही स्टैंड से उसने अपना स्कूटर निकाला, गाड़ी स्टार्ट की, पीछे से गाड़ी ने आकर ठोक दिया, वहीं पर उसका पैर टूट गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये सच्ची घटनाएं हैं, वहां रोज होती हैं। बाबा दीप सिंह जी का दर इतना बड़ा कैसे? कौन थे बाबा दीप सिंह जी? एक गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख ही थे ना। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख, पर अपना जीवन इतना ऊंचा रखा, ऐसी सेवा की कि शीश तली पर रखकर, सब जानते हैं इतिहास, हरमंदिर साहब पर कब्जा कर लिया था मुगलों ने। बाबा दीप सिंह जी का सर कलम हो गया। बाबा दीप सिंह जी ने अपना सर अपने हाथ पर रखकर जंग लड़ी और हरमंदिर साहब को आजाद करवाया। ऐसी सेवा।
कौन कर सकता है? जो मर कर भी नहीं मरे, ऐसे बाबा दीप सिंह जी। कौन थे वो? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के एक सिख। नदर हो गई, क्या बन गए? नदर रहमत जिस पर पड़ी, बंदे से खुदा कर दिया खुदा। पर वो बने कैसे? कैसे बने? बाबा दीप सिंह जी का जीवन पढ़ो साथ संगत जी। अगर नदर चाहिए तो हमें भी ये करना पड़ेगा। सारी रात जागकर 101 श्री जपजी साहिब जी के पाठ का नेम था उनका। हर से बोले धन गुरु नानक। 101 पाठ श्री जपजी साहिब जी का नेम बाबा दीप सिंह जी का। हमारा एक भी नहीं है, एक भी नहीं। और गुरु नानक पातशाह के वचन हैं कि बिन जप जेवे जो प्रसाद, सिख नहीं वो आद जुगाद। कि बिना जपजी साहिब जी के पाठ किए बिना कोई मुख में अपने अन्न डाल ले, वो मेरा सिख ही नहीं। हर से बोले धन गुरु नानक। नदर मिले कैसे? हमें पता चल गया कि नदर दुनिया की सबसे बड़ी दात है, पर हमें कैसे मिले? हम ऐसा क्या करें कि गुरु की नजर हम पर हो जाए? क्या करें? असल बात तो यह है ना कि हमें कैसे मिले। तो अगली जो साखी आप श्रवण करेंगे, इसमें आपको पता चल जाएगा गुरु की नजर मिलती कैसे है। हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ दो पंक्तियां पढ़ें, फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे। ये सतगुरु नदर करे, ये सतगुरु नदर करे, ये सतगुरु नदर करे। ये सतगुरु नदर करे, ये सतगुरु नदर करे, ये सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे। ये सतगुरु नदर करे। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। मेरा मन तन शीतल होए। निमक एक हर नाम दे, मेरा मन तन शीतल होए। मन तन शीतल होए। जिसको पूरब लिखिया, इन सतगुरु चरण कहे। इन सतगुरु चरण कहे। इन सतगुरु चरण गहे। सतगुरु चरण गहे। लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां, ये सतगुरु नदर करे।
आइए अब प्रकरण को आगे बढ़ें और गुरु से पता चले हमें कि ये गुरु की नजर मिलती कैसी है। आया से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इस सृष्टि की सबसे बड़ी दात गुरु की नजर हमें कैसे मिले, हमें कैसे मिले। इतिहास में नाम आया है भाई कटारू, ध्यान दीजिए साथियों। इतिहास में नाम आया है भाई कटारू, 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी के समय का सिख हुआ है। गुरु अर्जन देव जी महाराज से सिक्खी की दात लेकर भाई कटारू ने गुरु अर्जन देव जी महाराज से बेनती की, पातशाह मैं गजनी का रहने वाला हूं, गजनी इस्लामिक मुल्क है, वहां पर जा रहा हूं, कृपा करना मुझ पर कोई औखी घड़ी ना आए, मेरी सहायता करना, मेरी रक्षा करना वहां पर। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ने उसे कुछ वचन दिए कि इनकी पालना कर, तेरा कोई बाल भी भिंगा नहीं कर सकेगा। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो 5 वचन क्या थे, श्रवण कीजिए। पहला वचन, गुरु अर्जन देव जी महाराज 5वें गुरु नानक ने भाई कटारू को दिया कि रोज बिना नागा निता प्रति अमृत वेले उठना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहला वचन। दूसरा, उठकर श्री जपजी साहब जी की बाणी से जुड़ना है, पाठ करना है जपजी साहब जी का। ध्यान दीजिए साथ संगत जी, बड़े ही कीमती वचन है, बड़े ही कीमती। 5वें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वचन दिए भाई कटारू को। पहला वचन अमृत वेला संभालना, दूसरा वचन श्री जपजी साहब जी की बाणी से जुड़ना। अब तीसरा वचन, भाई कटारू की वहां पर राशन की दुकान थी साथ संगत जी, राशन की दुकान। 5वें गुरु नानक कहने लगे जब राशन तोलता है ना तो सौदा खुला तोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये वचन दिया, सुनिए ध्यान से। यहां पर 99% सब दुकानदार हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज वचन दे रहे हैं कि सौदा खुला तोलना। कई लोग कम तोलते हैं, कई लोग पूरा। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं नहीं, तू गुरु का सिख है, सौदा खुला तोलना, ज्यादा तोलना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चौथा वचन, कोई गरीब आ जाए, कोई गरीब आ जाए कहे कि मेरे पास पैसे नहीं है, उसे खाली मत मोड़ना, जितनी तेरी समर्था है सौदा देकर भेजना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कटारू गजनी गया, उसने इन सारे वचनों की पालना की। अमृत वेले उठता है, श्री जपजी साहब जी की बानी पढ़ता है, सौदा खुला तोलता है, जो भी आ जाए पलड़ा जब तक नीचे नहीं लग जाता सौदा डालता है और तोल कर देता है। जब ऐसी काम करेगा, गरीब आएगा, सौदा देगा, पैसा नहीं है तो भी ज्यादा तोल के देगा। सारे शहर में भाई कटारू की उस्तत होने लगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब ये ना जाने निरंकार की क्या लीला है, ये तो वही जाने। जब भी किसी की उस्तत होने लगे ना, 8-10 दुश्मन अपने आप ही पैदा हो जाते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बनाने नहीं पड़ते, अपने आप पैदा हो जाते हैं। होता आया है, कबीर जी को ले लो, नामदेव जी को ले लो, जितने भी भगत हुए हैं, कोई भी हो, किसी कोई भी नहीं छूटा है इससे। निंदक अपने आप पैदा हो जाते हैं। यही हुआ जब इसकी उस्तत होने लगी भाई कटारू की, कुछ लोग सहन नहीं कर पाए। क्या किया उन्होंने साथ संगत जी? इस घटना से एक एक पहलू से साथ संगत जी शिक्षा मिलती है। इस साखी से एक एक पहलू से ध्यान से श्रवण कीजिए। कुछ लोग 7-8 लोग मिलकर भाई कटारू की दुकान पर आ गए। दुकान पर आ गए, क्या किया? 2 लोगों ने उसे बातों में लगाया और बाकियों ने उसके जो वजन थे, वजन जिससे वजन करते हैं, सरकारी वजन होते हैं, वो वट्टे, वो तोल, वो बदल दिए। अच्छे वाले उठा दिए, हल्के वाले रख दिए। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक।
और ये करके वहां से चले गए और 5 मिनट के अंदर महकमे वाले आ गए चेक करने के लिए। भाई कटारू से कहने लगे तेरी शिकायत है, तू कम तोलता है। भाई कटारू कहने लगा हाथ खड़े करके कि ऐसा हो नहीं सकता, आप चेक कर लो वजन। और जैसे ही भाई कटारू की नजर वजन पर गई, समझते देर न लगी कि वजन बदल दिए गए हैं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। अब दुकान उसकी, वजन उसका, कहीं कैसे मेरे नहीं है। साथ संगत जी हम होते तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाते, पर भाई कटारू ने क्या किया, चिंता को चिंतन बना लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महकमे वालों से कहा आप वजन चेक करो और मुझे मत बुलाना, और खुद एक तरफ बैठ गया चौंकड़ी मारकर और गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों का ध्यान धरा और श्री जपजी साहब जी की बाणी पढ़नी आरंभ कर दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या किया, मुश्किल समय आया, हाई तौबा नहीं मचाई, सर पकड़कर नहीं बैठ गया, उनसे झगड़ा नहीं किया, बाणी का आसरा लिया। बाणी का महापुरुष कहा करते थे गुरु की नजर चाहिए तो हर काम में गुरबाणी का आसरा लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गजनी में बैठा है हजारों मील दूर भाई कटारू गुरु अर्जन देव जी का सिख। यहाँ पर हरमंदर साहब में गुरु अर्जन देव जी बैठे हैं। किसी ने एक टका लाकर माथा टेका, गुरु अर्जन देव जी महाराज ने वो टका अपने हाथ में उठा लिया। कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं, कभी इस हाथ में रखते हैं। सेवादार संगत सब देख रही है कि पातशाह लोग हीरे चढ़ा जाते हैं, आप उनकी तरफ कभी देखते नहीं। ये टका आपको बड़ा प्यारा है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे गजनी में हमारे सिख पर विपता आ पड़ी है, विपता। और उस विपता में उसने गुरबाणी का आसरा लिया है, श्री जपजी साहब जी की बाणी आरंभ कर दी है, डोरी हमारे पर छोड़ दी है। महकमे वाले वजन चेक कर रहे हैं, जिस तरफ वजन कम होने लगता है मैं ये टका उस तरफ रख देता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अगर वजन वो इस तरफ रखते हैं तो मैं टका इस तरफ रख देता हूँ, कहीं मेरे सिख का तोल वजन कम ना निकल आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कमाल की बात है साथ संगत जी, कमाल की बात है। आपके मन में सवाल नहीं उठते? संगत के मन में सवाल उठे। संगत ने पूछा कि बाबा जी आज हमें एक बात बताइए, आप क्या सबकी रक्षा करते हैं, सबकी जितनी भी संसार है? गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे नहीं। प्यार से बोले धन गुरु नानक। निरंकार रोजी सबको देता है, रक्षा सबकी नहीं करता। रक्षा सिर्फ उसकी करता है जो उसके हुक्म में चले। बात को गहराई से समझना साथ संगत जी। आखिरी बातें हैं, तथ्य है, मॉरल ऑफ द स्टोरी है। नदर मिले कैसे? गुरु अर्जन देव जी महाराज को संगत ने पूछा आपने भाई कटारू की रक्षा क्यों की? कहने लगे वो हमारे हुक्म में चलता है। जो भी गुरु के हुक्म में चलता है, अपने गुरु के हुक्म में चलता है, उसकी जिम्मेदारी गुरु पे आ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये कानून भी है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हो, जॉब करते हुए वर्किंग आवर्स में आपके ऊपर कोई विपता आ जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो सारा हर्जाना मालिक को भरना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्योंकि उस वक्त वो उसका काम कर रहा था, हुक्म में था। अगर नौकरी का समय खत्म हो गया, घर में आकर कुछ होता है तो मालिक की जिम्मेदारी नहीं है। अगर वर्किंग आवर्स में उसे कुछ होता है तो मालिक की जिम्मेदारी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे जो सिख हमारे हुक्म में रहता है उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी। प्यार से बोले धन गुरु नानक। और भाई कटारू हुक्म मानता है। और हुक्म क्या है साथ संगत जी? क्या हुक्म है? एक को नाम हुक्म है, नानक सतगुरु दिया बुझाई जियो। और नाम क्या? क्या नाम? कभी जपे। साचा साहेब साच नाए, पाख्या पाओ अपार, आखे मंगे दे दे, दात करे दातार, फेर की अज्ञा रखिए, जित दिसे दरबार, मुंह के बोलन बोलिए, जित सुन तरे प्यार, अमृत वेला सच नाओ, वड्याई विचार, कर्मी आवे कपड़ा,
नदरी, नदर आ गई ना बात नदर पे। कर्मी आवे कपड़ा नदरी मोख द्वार। अगर चाहते हो गुरु हमारी सहायता करे मुश्किल समय में, अमृत वेले उठकर नाम जपना पड़ेगा। ये संसार की सबसे बड़ी नियामत अगर नदर चाहिए, अमृत वेले उठकर नाम जपना पड़ेगा। सुबह 3 से 6 ये सोने का समय नहीं है। महापुरुष जो होते कमाई वाले 12 बजे ही स्नान करके बैठ जाते हैं, पूरी रात बंदगी में बिताते हैं। गृहस्थियों को हुक्म है, हुक्म बेनती नहीं, हुक्म है 3 से 6 बजे उठने का, सिमरन में बैठने का। और जो उसका हुक्म मानेगा गुरु को उसकी रक्षा करनी पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु को रक्षा करनी पड़ेगी। अगर उसके हुक्म में रहोगे तो हुक्म मान लो उसका। क्या है उसका हुक्म? अमृत वेले उठो। साथ संगत जी, बिन हर भजन नहीं छुटकारा, कहो नानक ये तत्व विचारा। ये तत्व है। अगर आप कहो कि बिना नाम जपे, बिना अमृत वेले उठे हमारा छुटकारा हो जाए, होने वाला नहीं। भटकते रहो यहां वहां, जो मर्जी कर लो, किसी भी धर्म को मानो, कुछ भी कर लो, चाहे गुरु नानक को मानो, चाहे राम जी को, चाहे कृष्ण जी को, अमृत वेले उठ के नाम जपना ही पड़ेगा। जो नहीं जपेगा प्राप्ति नहीं होगी। और ये जो जन्म जिसके लिए मिला था, बाजी हार कर चले जाएंगे। आइए सब मिलकर गान करें। लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे, 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 जो सतगुर नदर करे। लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे, लख खुशियां पातशाहियां जो सतगुर नदर करे। पातशाही 10वीं कबियो बाच बेनती चौपई, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त के इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सब है तुम कावो, आप हाथ दे मोए बचावो। सुखी बसे मोरो परवारा। सेवक सिख सब करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए। सब बैरन को आज संगरिए। पूरन होए हमारी आशा, और भजन के रहे प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई और ना त्याओ, जो पर चाहो सो तुम ते पाओ। सेवक सिख हमारे तारिए, चुन सत्र हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उभरिए। मरण काल का त्रास नुवरिए। हो जो सदा हमारे पछा, श्रेयस तुझ जो करियो रक्षा। राख लियो मोय राखण हारे। साहिब संत साहिब प्यारे, दीन बंधु दुष्टन के हंता। हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा, काल पाए शिव जो अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा। सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जो थियो। जवन काल सब लोक सवारा। नमस्कार है काहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो,
देव दैत जक्षण उपजायो आद अंत के अवतारा सोई गुरु समझो हमारा नमस्कार तिसही को हमारी सगल प्रजा जिने आप सवारे सेवकन को शिव गुण सुख दियो सकरन को पल मोहब्बत कियो कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चेटी ते कुंजर अस्तोला सब पर कृपा दृष्ट कर भोला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछान कट कट के पट पट की जान जब उद करख करा कर तारा प्रजा तर्क तब दे अपारा जब वह करख करत हूँ कब मैं मिलत दे तर सब जेते बदन श्रेष्ठ सब धार आप आपने बोझ उतार तुम सब ही ते रहत निरालम भेद भेद अरे आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद संभव तांका मूढ़ उचारत भेदा को पेव न पापद भेदा तांको कर पान अनुमान महामूढ़ कछ भेद न जान महान देव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत न पेव आप आपनी बुध है जेती तो पिन पिन तो तेती तुमरा लखा न जाय पसारा कुछ सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग पयोरा वकई कोपा अंडज जेरज से तज कीने कुछ खान बहो रच देने कहूँ फूल राजा हब बैठा समट पे संतरे बैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंभव आद जुगाद स्वरूप से अम्ब अब रक्षा मेरी तुम करो असक संगरो दुष्ट जिते उठवते उत्पाता सगल मलेश करो रण काता जे अस तुझ तव सरणी पर के दुष्ट दुखत हव मरे पुरख जवन पग परे तिहारे इनके तुम संकट सब तारे जो कल को एक बार ते है आके काल निकटने है रक्षा होई ताए सब काला दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला कृपा दृष्ट जाय निहरो आके तापत नगमो हरो और तो सिद्ध कर्म सब होई दुष्ट छा सके न कोई एक बार जिन तुम्हें संभारा पास ते ताए जिन नर नाम तिहारो कहा दुष्ट लोक ते रहा खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट लोक ते ले बचाई खड़ग केत में शरण तिहारी आप हाथ दे ले उबारी सर्व डोर मोह सहाय दुष्ट दुख ते ले राम कली महला तीजा आनंद क्यों कार सतगुर प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया सहज से की मन वजिया वाधाया राग रतन परवार परियां शब्द गावण आइया आनंद होवा सतगुरु मैं पाया मन मेरा तू सदा रो हर नाल रो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा कार्य सब सवारना सुना गला समरस स्वामी सुख मनो विसारे करे नानक मन मेरे सदा रो साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब कुछ है जिदे सो पावे तेरी नाम मन सावे नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द मेरे कहे नानक सच्चे सैव क्या नहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया कर शान सुख मन आए वस्या जिन इच्छा
सब पूजाइया कुर्बान पिता गुरु मिठो दिसिए वड्याइया करे नानक सुनो संतो सबत करो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो साचा नाम मेरा वाजे पंज शब्द घर सबागे सबद वाजे कल्ला जे करतारियां पंज दूत वस कीते काल कंटक मारिया परम पाया तू जिनको से नाम रटे लागे करे नानक दस को आदित करे नरवाजे मन सुनो बड़ भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल सूरे संताप उतरे सुनी सच्ची बानी संत साधन पाए सबसे पूरे गुप्ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुरु रे पर पूरे बिनवंद नानक गुरु चरण लागे वाजे अनहद तुरे सलो पवन गुरु पानी पिता माता तक महात जिस रात गाई गाया खेलिया सगल जगत चंगियाइयां बुरियाइयां वाचे धर्म हजूर करमी आपो अपने जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया वाहेगुरु 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 ओ वाहेगुरु 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 जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ध्याया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ते आया जिन्नी नाम ध्याया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले खेती छोटे नाल बोलो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
जब से थामी उंगली तुम्हारी राह राह दिखाती है, राह राह दिखाती है। अब तो हर मुश्किल की आंधी मेरा दिया जलाती है, मेरा दिया जलाती है, मेरा दिया जलाती है। साथ हो मेरे आप गुरुजी, फिर काहे को घबराना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक दिन में 100 बार गुरुजी करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। क्यों ना उड़ूं मैं आसमान में, हाथ तुम्हारे डोरी है, हाथ तुम्हारे डोरी है। तोड़ के नाता इस दुनिया से, डोर तुम्हीं से जोड़ी है, डोर तुम्हीं से जोड़ी है, डोर तुम्हीं से जोड़ी है। डोर हमारी थाम के रखना, हमें तो बस उड़ते जाना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक दिन में 100 बार गुरुजी करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। रूप बदल के आए हो तुम, शिव जी के अवतारी हो, शिव जी के अवतारी हो। क्यों मैं जाऊं किसी और दर, जब तुम ही त्रिपुरारी हो, जब तुम ही त्रिपुरारी हो, जब तुम ही त्रिपुरारी हो। गले लगा के मुझे गुरुजी प्यार हमेशा बरसाना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना। एक दिन में 100 बार गुरुजी करूँ तुम्हारा शुक्राना। फुर्सत हो तो किसी रोज तुम मेरे घर भी आ जाना, मेरे घर भी आ जाना।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी
शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।